स्टार्ट। टुडे आई एम टू डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है हिंदी में काल। ठीक है, तो काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रात 10 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहिए। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? দেখো, সো কাল কাল এই কথাটা এই কথাটা থেকে অনেক কিছুই বোঝা যায়। এই কাল কথাটা আমরা মূলত বাংলায় অনেকটা শুনেছি। তো বাংলায় আমরা জানি কি কাল হচ্ছে 3 প্রকার। ঠিক আছে, তো তো সে বাংলায় আমরা জানি কাল 3 প্রকার: অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। ঠিক আছে, অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। তো সেক্ষেত্রে এটা বলতে পারি, এইখানে যে কাল, যেমন আমরা ইংলিশে জানি টেন্স, তো প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এন্ড ফিউচার টেন্স। তো এই হিন্দিতে কালের যে আলোচনাটা একটু আলাদা রকম কিছু শব্দের প্রয়োগ আমরা পাবো। আহ, তো ন্যাচারালি আমরা কি জানি, যেটা আগে ঘটে গেছে সেটাকে অতীতকাল বলে, যেটা এখন চলছে সেটাকে আমরা বর্তমান কাল বলি, যেটা ভবিষ্যতে হবে সেটাকে আমরা আহ তোমার ভবিষ্যৎকাল বলবো। কিন্তু এখন বর্তমানে অতীতকাল কি? অতীতকাল কি আহ ধরো তুমি গ্রাজুয়েশন করছিলে, তুমি গ্রাজুয়েশন করেছো আগে, গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেন তুমি ডিসাইড করেছো তুমি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নেবে। এই মুহূর্তে তুমি সরকারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ। ব্যাস, সরকারি পরবর্তী ক্ষেত্রে তুমি চাও একটা সরকারি, যে কোনো একটা সরকারি তোমার চাকরি হোক, এটাই তুমি চাও। তো ডেফিনেটলি এটাই চাও, তার কারণ এটা হয়ে গেলে তোমার বাড়ির প্রত্যেকের জন্য ভালো হবে এবং এটা নিজের জন্য বেটার। সো এটা একটা জিনিস। তো এইভাবে কাজগুলো দিয়ে যদি আমরা বিচার করি। আচ্ছা, তোমার ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস কি ক্র্যাক ছিল আগেরটা? হ্যালো, তোমার কি ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারিটা একটা ক্র্যাক ছিল, মানে তুমি পাস করেছিলে? আগেরটা তুমি পাস করোনি? পাস, ও পাস করোনি তাই তো? আচ্ছা, তুমি কি এবারে দেবে নাকি? কারণ দেখলাম অ্যাপ্লিকেশনের বোধহয় মানে ডেট পড়েছে বা এরকম কিছু একটা দেখলাম, বোধহয় ডিসেম্বরের 24-25 তারিখ থেকে বোধহয় অ্যাপ্লিকেশন একটা দেখলাম। তো হুম হুম, হ্যাঁ 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 তো সেটাই আর কি, এর জন্যই বললাম। আবার আজকে স্কুল সার্ভিস কমিশন। হ্যাঁ, বলো বলো বলো, ক্লাস। আচ্ছা 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 আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ও, ক্লার্কশিপ আর পুলিশ তোমার একটা ট্যাগ ছিল তাই তো? ওগুলোর কি এখনো ডিউ আছে নাকি? ও, ক্লার্কশিপের মেন পরীক্ষা তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারোনি? আচ্ছা আচ্ছা, আর পুলিশের ব্যাপারটা কি হলো? পুলিশের ব্যাপারটা কি ডিউ আছে? ঠিক আছে, অসুবিধা কিছু হবে না। ঠিক আছে, এটার জন্য এইবারে কন্ডিশন, বাবার শরীর খারাপ, তার জন্য হতেই পারে, এটা কোনো ব্যাপার না। ऐसा हो ही सकता है। উম, এবার- এবারে তো ডাব্লিউবিসিএস টা বসো তাহলে ভালো করে। আচ্ছা, মেন্সে তোমাদের যে এই যে অপশনাল পেপার গুলো কি রকম, কি নাও তুমি? আচ্ছা 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 আচ্ছা।
ওটা অপশনাল রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি প্রিপারেশন নাও না, কারণ তোমাদের তো পরীক্ষার ডেট তো ঘোষণা করেনি, না করেছে? ওর মধ্যে প্রিলিমিনারিটা নিয়ে নেবে। হুম হুম হুম, ভোটের জন্য এটাই হচ্ছে ব্যাপার। ভোটের জন্য সমস্ত দিকে স্কুল সার্ভিস কমিশন আজকে একটা ছোট করে বিজ্ঞপ্তি টাইপের বার করেছে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। ওরাও অ্যাপ্লিকেশনটা, ওরা তো অনেক তাড়াতাড়ি করছে, এরা এই মাসের 23 তারিখ থেকে 5ই জানুয়ারির মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করিয়ে নিচ্ছে। উম, ভোটের আগে টোফ। ভোটের আগে টোপ লাগে। সো বেরিয়ে গেল একদম সবকিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেতা মন্ত্রী সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে ব্যাপার, যাই হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই আর কি, ওটাই। কিছু তো করতে হবে, অতএব ওরা এখন তড়িঘড়ি একটু করবে এখন এরকম অনেক কিছু। सो देखो काल्टा, देखो बच्चों, নিচে দিয়ে গিয়ে চিত্র पर आधारित বাক্য को पढ़िए और समझिए। মানে এখানে যেহেতু বাচ্চাদের বই, এনসিইআরটি বই, সো এখানে বাচ্চাদের বলা হয়েছে, তো বাচ্চাদের বলা হচ্ছে যে নিচে দিয়ে যাওয়া ছবির আধারিত করা যে বাক্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে দেখে পড়ো এবং বোঝবার চেষ্টা করো। कल तेज आंधी आई थी, তো कल तेज आंधी आई थी এটা একটা বাক্য। তারপরে বলছে আজ সুবহ সে হি বর্ষা হো রহি হে, এটা একটা বাক্য। আর একটা বাক্য, কাল হামারা বিদ্যালয় বন্ধ রহেগা। এই তিনটো বাক্য কিন্তু তিন রকম। এই তিনটে বাক্য কিন্তু মোটেও একরকম নয়। তুমি বলতে পারবে না যে এই তিনটে বাক্য স্যার একই রকম, একরকম নয়। কারণ कल तेज आंधी आई थी, कल तेज आंधी आई थी मतलब कल आई थी, आज तो नहीं आई है, कल आई थी। या फिर परसों होगा ऐसे नहीं बोल रहे, काल आई थी तो काल तेज आंधी आई थी। ঠিক আছে, মানে কাল খুব ঝড় এসেছিল। আজ সুবহ সে হি বর্ষা হো রহি, মানে আজকে সকাল থেকেই প্রচন্ড বর্ষা বৃষ্টি হচ্ছে, এটা একটা বলতে পারি। আর কাল হামারা বিদ্যালয় বন্ধ रहेगा, মানে আগামী কাল বন্ধ থাকবে। হ্যাঁ, কাল হামারা বিদ্যালয় বন্ধ रहेगा, কোনো কারণ আছে, যে কারণবশত তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ আছে, বন্ধ থাকবে। ঠিক আছে, तो क्या है, बोला जा रहा है कि ऊपर के वाक्यों को पढ़ने पर उनमें प्रयोग किए गई क्रियाएं आई थी, हो रही है तथा रहेगा से ये पता चल रहा है कि क्रिया के होने का समय क्या है। তো এই যে ক্রিয়া, যে পদগুলো যেগুলো আমরা আগের চ্যাপ্টার যখন ক্রিয়া পড়েছি সেখানেও আমরা দেখেছি যে ওখানে উম, যে শব্দগুলো ক্রিয়া হচ্ছে সেগুলোকে আমরা সবুজ রং দিয়ে বোঝাচ্ছি। এখানে তাই আই থি, হো রহি হে, রহেগা, এই যে যে সমস্ত যে শব্দগুলো মানে ক্রিয়াপদ সেগুলোকে সবুজ করে দেওয়া হয়েছে, हरा रंग कर दिया है। तो आई थी क्रिया शब्द क्रिया के हो चुकने का संकेत दे रही है। आ आई थी, ये जो शब्द है ना, इस शब्द से हमको ये जताना चाह रहा है कि हो चुकने का, मतलब होए গেছে, हो चुकने का संकेत दे रहे हैं। हो रही है क्रिया शब्द क्रिया के इसी समय होने का, মানে এখন হচ্ছে, एट प्रेजेंट হচ্ছে, तो इसी समय होने का संकेत दे रहे हैं। तथा रहेगा क्रिया शब्द क्रिया के आने वाले होने की बात बता रहा है। तो পরে হবে, পরে হবে এরকম কোন একটা জিনিস সেই বিষয়ে বলছে, তো आने वाले समय की होने की बात कर रही है। ठीक है, अतः ये सभी क्रियाएं अनंतर तो अतः हम बोल सकते कि अतः ये सभी क्रियाएं क्रिया के কাল অর্থাৎ সময় কি সূচনা দেবে। তো এই সমস্ত যে ক্রিয়াগুলো এগুলো যে ক্রিয়ার কাল অর্থাৎ তার যে সময় সেই সময়ের সূচনাটা দিচ্ছে। ठीक है, अतः ये सभी क्रियाएं क्रिया के काल अर्थात समय की सूचना दे रही है, মানে ক্রিয়ার যে কাল তার যে সময়টা সেই সময়টা সূচনা দিচ্ছে। কাল का अर्थ है समय, মানে কালের যে অর্থ সেই অর্থটা হচ্ছে সময়। তাহলে কালের অর্থটা কি হলো, যে কালের অর্থটা হচ্ছে সময়, তা কাল কা अर्थ है समय, তাহলে কালের অর্থটা হচ্ছে সময়, टाइम। ओके, अतः कहा जा सकता है कि अनंत, ताले हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब
अब जो है, अब बोला जाएगा कि काल किसे कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि তাহলে আমরা বলতে পারি, কি বলতে পারি, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से, देखो क्रिया के जिस रूप से, देखो क्रिया के बहुत तरीके का रूप है क्रिया में, तो बहुत तरीके का रूप जब आ रहा है तो इसमें बोला जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप से, माने क्रिया जे रूपे द्वारा, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो, কাজ হওয়ার যে সময়টা তার যে বোধটা হচ্ছে, ক্রিয়াকে जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, তাকে কাল বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাকে কাল বলা হচ্ছে। তো जिस रूप से काम के होने का समय, দেখো ক্রিয়ার যেই রূপের দ্বারা, ক্রিয়ার যেই রূপের দ্বারা কাজ যে হচ্ছে, সেই কাজ হওয়ার যে সময়টার যে বোধ হচ্ছে, এই সময়ের বোধটাকে काल বলা হচ্ছে। तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध है उसे काल कहते हैं। बस काल এটাকে বলা হলো। अब কাল के भेद का मतलब মানে কালকে যে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটা কালকে ভেদ। কালকে তিন ভেদ হতে মানে কালকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এখানে সেটা দেখাচ্ছে, এখানে দেখাচ্ছে যে কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঠিক আছে, কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। तो কিরকম ভাবে তিন भागे भाग করেছে, देखो काल के जो तीन विभाजन हो रहे हैं, जैसे कि पहले में बोले जा रहे भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या है, जो हो चुका है। বাংলায় যেটাকে অতীতকাল বলি, ইংরেজিতে যেটা আমরা পাস্ট টেন্স বলি, এটা হিন্দিতে বলে ভূতকাল। ভাই দীর্ঘতা কায়াকালা ভূতকাল। ঠিক আছে, তো বাংলায়, हाँ एकदम अतीत, এটাকে ভূতকালটাকে অতীত বলে। ঠিক আছে, अब वर्तमान काल जो हो रहा है वर्तमान काल। अब तीसरे में ভবিষ্যৎ কাল। ভবিষ্যৎ কাল তো থাকেই, কারণ ভবিষ্যৎ কাল সবেতেই রয়েছে, বাংলাতেও রয়েছে, সংস্কৃতেও রয়েছে, इंग्लिश फ्यूचर टेंस तो রয়েছেই। तो भविष्यत काल। अब भूतकाल हम लोग को मालूम चल गया कि भाई जो चीज हो चुका है, पहले हो चुका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मधुरिम ने गीत लिखा। तब मधुरिम ने गीत लिखा, तो मधुरिम किसी लड़की का नाम होगा, तो मधुरिम ने गीत लिखा। ठीक है, सोमा ने गीत गाया। ओके ठीक है, अच्छी बात है। यही गीत अखबार में भी छपा। तो देखो, तो ऊपर दिए गए तीनों वाक्य में लिखा, गाया तथा छपा, ये क्रिया शब्दों की क्रिया की बीत समय के समय में होने का बोध करा रहा है। तो এটা কি যে উপরে দিয়ে থাকা যে तीनों যে শব্দটা ऊपरे दिए गए तीनों वाक्य में लिखा, गया तथा छपा, क्रिया शब्द क्रिया के बीते समय का होने का बोध कर, মানে ক্রিয়া যে যে হয়ে গেছে, এই কাজগুলো যে হয়ে গেছে সেইটা বোধ করাচ্ছে। ঠিক আছে, तो ये भूतकाल ही क्रिया है। तो এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা ভূতকালের ক্রিয়া, ये भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, अतः कहा जाता है कि अनंतर তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। মানে ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা তার হয়ে যা, মানে ক্রিয়াকে जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ক্রিয়ার যেই সময়, মানে ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা তার যে হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ তার যে পেরিয়ে যাওয়া যে সময়টা, সেই সময়টার যে पता মানে জানা যায়, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले, তার যে कालटा যে बीते हुए समय में होने का पता चले, এই যে কালটা যেটা বয়ে গেছে বা পেরিয়ে গেছে, যে সময়টা পেরিয়ে গেছে সেই সময়টার যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটাকে भूतकाल বলে। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, বুঝতে পারলে? अब देखो वर्तमान काल। वर्तमान काल तो बहुत आसान है। देखो बोला जा रहा है कि सुबह से वर्षा हो रही है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। तो जो भी बातें यहाँ पर हमने बोला, कि मैंने बोला इस जगह पर, इस बातों को देखा जा रहा है कि ये जो बातें हैं अभी की अभी हो रहा है, बाद में हो गया है ऐसे कुछ नहीं है, না আগে হয়ে গেছে এরকম কোনো ব্যাপারই নয়। এই সমস্ত বিষয়টাই কিন্তু at present চলছে।
আগে হয়ে গেছে এরকম কোনো ব্যাপার না, সব at present চলছে। তো सुबह से वर्षा हो रही है, সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে हो रही है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है। तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, तो गुब्बारे वाला कहाँ पर बेच रहा है भाई? गुब्बारे वाला तो गुब्बारे बेचेगा। ठीक है, तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। ठीक है, तो ये गया। अब ऊपर दिए गए तीनों वाक्य में हो रही है, खेल रहे हैं तथा बेच रहा है, तो क्रिया शब्द क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध कर रहे हैं। এই যে বিষয়গুলো, এই যে উপরে দেয়া থাকে যে তিনটে বাক্য, সেই তিনটে বাক্যের দ্বারা আহ, তো এখান থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে, এখান থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে কি বলছে, যে होने का पता चले। ठीक है, तो इसको होने में पता चले, তো এটা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আহ, এটা থেকে এটা কি বোঝা যাচ্ছে, এখান থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान अर्थात इसी समय में होने का पता चलता है, মানে ক্রিয়ার যে সময়ের দ্বারা সে যে বর্তমানে আছে, সময় আছে, তার যে বিষয়টা সম্বন্ধে জানা যায়, তাকেই বলা হচ্ছে বর্তমান কাল। তো উপর দিয়ে গিয়ে তিন বাক্য में, উপরে দিয়ে থাকে যে তিনটে বাক্যগুলো আমরা কি পেলাম, তিনটে বাক্য বলতে আমরা পেলাম हो रही है। हो रही है, हो रही है, ठीक है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रही है, हो जाने दो भाई। खेल रही है, तो खेल रहे हैं, तो अभी खेल रहा है। तो बेच रहा है, जो आदमी गुब्बारे बेच रहा है वो अभी के अभी बेच रहा है, तो बेच रहा है। तो ऊपर दिए गए तीन वाक्यों को देख कर क्या समझ रहा है भाई, ये क्रिया शब्द जो है क्रिया के वर्तमान समय का होने का बोध करा रहा है। ठीक है, अब ये वर्तमान কাল কি ক্রিয়া है, তো এটা হচ্ছে বর্তমান কালের ক্রিয়া। তো বর্তমান কালের ক্রিয়া হচ্ছে, अतः कहा जा सकता है कि তাহলে এখন বলতে আমরা পারি যে क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान अर्थात इसी समय में होने का पता चलता है। ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা তার যে সময়টা, অর্থাৎ ইসি সময় মে, এই সময়ে যে বিষয়টা হচ্ছে, এই সময়টা হওয়ার যে ঘটনা, এই সময় एट प्रेजेंट যে ঘটনাটা ঘটছে, तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान इसी समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ক্রিয়াপদের যে রূপের দ্বারা তার বর্তমান অর্থাৎ এই সময়ের কথাটা সম্বন্ধে বোঝা যায়, তাকেই বর্তমান কাল বলে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या बता रहा है? मैं यही कार्य मैं यही कार्य जो काल करूंगा। कल अध्यापक जी हमें कविता पढ़ाएंगे। रविवार को मैं पापा के साथ लाल किला देखने जाऊंगा। देखो, एक चीज अच्छी तरह से सुन लो, जो पहले बता देता हूं। अगर कोई चीज काल बीत गया है, काल मीन्स अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं यस्टरडे, गतकाल। अगर काल कुछ बातें हो चुकी है, तो जो काल कल मैंने मछली खाई थी, बातें का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा। कल मैंने मछली खाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काल जो है यहाँ पर यस्टरडे यानी कि गतकाल যেটা হয়ে গেছে, तो उस दौरान हिंदी की में भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, आज मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, तो आज मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, तो मैं आज के दिन में अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, तो ये जो है वर्तमान काल होगा। ठीक है, आज के दिन वो पढ़ रहे हैं, तो टुडे। ओके, काल में विद्यालय जाऊंगी, काल में विद्यालय जाऊंगी, काल जाएगा, अभी तक गया नहीं है, काल जाएगा यानी कि टुमारो। ठीक है, काल जाएगा, तो वो जो है हिंदी में भविष्यत काल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो बोला जा रहा है, मैं यही कार्य काल करूंगा। कुछ कार्य शिक्षक ने दिया है, उन्होंने सोचा भाई शनिवार और रविवार तो छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, वीकेंड में 5 दिन तो विद्यालय है, दोनों दिन खेल के, एक दिन खेल ले थोड़ा कर लेते हैं, दूसरे दिन और कर लेंगे। बहुत ज्यादा
मैथमेटिक्स करने के लिए दिया है बच्चे को, तो उसने सोचा भाई थोड़ा सा शनिवार को कर लेते, थोड़ा सा रविवार को कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ऐसे ही मैं ये कार्य कल करूंगा। कल अध्यापक जी हमें कविता पढ़ाएंगे। देखो, अध्यापक जी जो है, अध्यापक जो शिक्षक जो होते हैं, वो लोग तो सोच के आते हैं विद्यालय में या कक्षा में, सोच कर ही आते हैं भाई क्या पढ़ाना होगा उनको, क्या पढ़ाएंगे वो लोग, तो क्या पढ़ाएंगे। उनका एक सोच विचार होता है, भाई ये हम आज ये पढ़ाएंगे, कल वो पढ़ाएंगे, कल ये पढ़ाएंगे, कुछ सोचना पड़ता है ना। तो खास करके जब दो लोग जैसे कि हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लोग टीचर पढ़ाते हैं, उनको तो ये माथे पे रखना ही पड़ता है। देखो, मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने में उस दौरान जो सिलेबस खत्म करने की बात आती है, उसको एक विषय के अंतर्गत 4 से 5 शिक्षक हो जाता है एक विषय के। तो अगर कोई भी शिक्षक एक एक विषय को ऐसे, अपने विषय को ऐसे विभाजित कर लेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे विषय होता है जो लोग हमें पढ़ाता है। थोड़ी एक टीचर ये हमें मैथ कराएगा, वही अंग्रेजी भी पढ़ाएगा, वही रीजनिंग कराएगा, सब कुछ कराएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता है कि देखो वो मैथ के लिए पढ़ा रहा है वो मैथ ही पढ़ाएगा, जो हिस्ट्री पढ़ाता है वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, जो जियोग्राफी है जियोग्राफी पढ़ाएगा। ऐसे करेगा हिस्ट्री का जो सिलेबस है पूरा कवर कर पाएगा जल्दी से। ऐसे ही होता है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के जो पढ़ाते हैं शिक्षक वगैरह, वो हर जगह पर ऐसे एक चार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाकर पढ़ाते हैं, ऐसे ही कुछ है। तो ऐसे ही कल अध्यापक जी हमें कविता पढ़ाएंगे, ठीक है। रविवार को मैं पापा के साथ लाल किला देखने जाऊंगा, ठीक है भाई। रविवार छुट्टी का दिन है, तो चले जाओ, लाल किला देखने जाऊंगा। तो इन तीनों वाक्यों में करूंगा, पढ़ाएंगे तथा जाऊंगा, क्रिया शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध करा रहा है। यही जो 3 वाक्य, इन तीनों वाक्य में करूंगा, पढ़ाएंगे तथा जाऊंगा, ठीक है। এই যে 3টে বাক্য, এই 3টে বাক্যের মধ্যে যে পেলাম करूंगा, पढ़ाएंगे या जाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है, तो এই বাক্যগুলো দ্বারা ক্রিয়াতে আসা যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে এগুলো ভালো করে देखते হবে। तो इसको हमको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। क्या हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से इन तीनों वाक्यों में क्या है, करूंगा, पढ़ाएंगे तथा जाऊंगा, क्रिया शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध कर रहे हैं। तो ये जो 3টে বাক্য দেখতে পেলাম, এই 3টে বাক্যের মধ্যে যে करूंगा हो रहा है ना, पढ़ाएंगे हुआ, जाऊंगा हुआ, ये सब कुछ क्या हुआ, या क्रिया शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का, মানে ক্রিয়া শব্দের মধ্যে ক্রিয়াপদের মধ্যে যে आगे হবে, तो क्रिया शब्द के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं। तो ये जो है आगे আসবে এরকম বিষয় সেটা বোধটা করাচ্ছে। तो ये भविष्यकाल की क्रिया, তাহলে এটা বুঝতে পারে যেটা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া, ওকে। सो अतः हम এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यकाल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उनका के आगे आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी क्रियार যে রূপের দ্বারা आगे आसा যে সময়টা, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आगे आने वाले समय में आगे আসা যে সময়টা, তার সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়, তাকে বলা হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, ঠিক আছে। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय होने का पता चलता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। बस हो गया, ठीक है। तो এটা বুঝতে পারলে এবারে। तो इसको अगर हमको याद में रखना है, इसे अगर हमको याद में रखना है, तो इस एनसीईआरटी की बुक में जो रहता है, जैसे कि हमने सीखा, तो इस अध्याय यानी कि काल से हम लोगों ने क्या सीखा, काल से हम लोगों ने सीखा कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो,
उसे काल कहते हैं। ক্রিয়া যে রূপের দ্বারা কাজ হওয়ার যে সময়টার বোধ হয়, तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का বোধ हो, মানে কাজ যে হচ্ছে সে হওয়ার যে সময়টার যে বোধটা হয় ताकि काल बने। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, ताकि काल बने। बस है यार। अब কাল के मुख्य तीन भेद है, মানে কালকে মূলত তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে। কিরকম? নাম্বার ওয়ান ভূতকাল, নাম্বার টু বর্তমান কাল, নাম্বার থ্রি ভবিষ্যৎকাল। কালকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। একটা এক নম্বর হচ্ছে ভূতকাল, দু নম্বর হচ্ছে বর্তমান কাল, তিন নম্বর হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল। হয়ে গেল। যেটা क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रियार যেই রূপের দ্বারা চলে যাওয়া এই সময়টা, মানে ক্রিয়াকে जिस रूप से उसके बीते हुए समय का, মানে ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা তার পেরিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া যে সময়ের কথা যার দ্বারা জানা যায় তাকে বলা হচ্ছে ভূতকাল। ঠিক है। अब क्रिया के जिस रूप से उसके इसी समय में होने का पता चलता है उसे বর্তমান কাল कहते हैं। মানে ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা তার এই সময়ে হবার কথাটাই জানতে পারা যায় তাকেই বলা হচ্ছে বর্তমান কাল। ঠিক আছে। अब क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाला समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यৎ কাল कहते हैं। ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা তার আসবে বর্তমানে সেরকম সময়ের কথা বোঝা যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার क्रिएट होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यৎ काल कहते हैं। মানে ভবিষ্যতে আসবে এরকম সময়টা যেটা দ্বারা বোঝা যায় তাকে বলা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কাল। বুঝতে পারলে? ওকে, তো এটা গেল। এবার আমরা যে প্রশ্ন উত্তরগুলো আছে সেগুলো বলছি। देखो क्रिया के काल से आप क्या समझते हैं? पहला जो सवाल है, क्रिया के काल से आप क्या समझते हैं? कि क्रिया के काल से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही देना है, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। वर्तमान काल या वर्तमान काल व भूतकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब अंतर बोलेगा, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। कब क्या कर बोल रहे हैं कि भाई देखो, वर्तमान काल और भूतकाल, यानी कि वर्तमान काल और अतीत काल। ठीक है, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके इसी समय में होने का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से उसके इसी समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और तो अगर अंतर स्पष्ट करना है ना, तब जाकर आपको जो देना ही देना है वो है उदाहरण। उदाहरण जो है देना ही देना है आपको। ठीक है, जैसे कि आप बोल दो कि भाई बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, हो जाएगा। तो वो हो गया। और क्रिया के जिस रूप से उनके बीते हुए समय की होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आप लिख दो भाई सोमा ने गीत गाया। ठीक है, सोमा ने गीत गाया। या फिर इस जगह पर आप कुछ आसान सा नाम लिख दो जिसमें आपका कोई, अगर परीक्षा में आया कभी, क्योंकि परीक्षा में ये भी है वैसे। तो देखो उसके बाद जो है, भविष्यत काल को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। भविष्यत काल को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा। तो देखो ये भी आसान है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे होने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। हो गया। तो पहले आप जो पूछ रहे हैं, जो भविष्यत काल के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो भविष्यत काल के डेफिनेशन के बारे में आपको स्पष्ट होना है। तो देखो, भविष्यत काल के उदाहरण के बारे में आप स्पष्ट हो जाएंगे। वैसे तो क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसकी, मैंने क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। बस ये लिख दो, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। वो हो गया। अब जाकर आपको क्या करना है, उदाहरण। उदाहरण तो आपको देना ही पड़ेगा। दो, देखो यहाँ पर प्रश्न जो पूछ रहे हैं इससे अच्छी तरह देखना। बोल रहे कि भविष्यत काल को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए का मतलब ये नहीं है कि भाई दो उदाहरण दो, द्वारा।
उदाहरण दिए स्पष्ट हो, जस्ट वन एंड ओनली। ठीक है, मैं ये कहा जाए काल करूंगा, बस करूंगा सी, स्पष्ट हो गया। अब देखो, और भी है बहुत सारे, जैसे कि बोल रहा है कि सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या है? बोल रहा है कि क्रिया का वो रूप जिससे उसकी इसी समय में होने का पता चलता है, पता चला है, होने का, क्रिया के वो रूप जिससे उसके इसी समय में होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? अच्छी तरह से सुन के बताना। नंबर वन भूतकाल, नंबर टू वर्तमान काल, नंबर थ्री भविष्य काल, नंबर फोर इनमें से कोई नहीं। हम्म। क्रिया का वो रूप जिससे उसके इसी समय में होने का पता चले, उसे कहते हैं नंबर वन भूतकाल, नंबर टू वर्तमान काल, नंबर, ओके ओके, गुड गुड। अब देखो, भूतकाल उस काल को कहते हैं, अच्छी तरह से सुनना। प्रश्न है, भूतकाल उस काल को कहते हैं जिसमें नंबर वन क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चले, क्रिया के इसी समय में होने का पता चले, क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले, या उपयुक्त सभी। हाँ हाँ, बीत का भूतकाल कहते हैं, लेकिन बीते हुए समय এটা পেরিয়ে গেছে। ধরে নাও না, তোমার আমরা এখন 2020 সালে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আছি, আজকে 21 তারিখ, তাই তো? আর 10 দিন মাস শেষ হয়ে যাবে, 10 দিনের দিন আমাদের মাস শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা নতুন বছরে পা দিয়ে দেবো, 2021 সাল। কোভিড কার্য, দেখো কোভিড, যে ভয়টা আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে কোভিড 19-এর। কোভিড 19 তো এখনো পুরোপুরি তো কন্ট্রোল আসেনি, তাই না? কন্ট্রোল কোথায়? হুম হুম হুম। তারপর এখন চেঞ্জ হচ্ছে, মানুষের কিরম ভাবে ধরা পড়ছে, আহ, কি কার যে কিভাবে হচ্ছে কেউ নিজেও বুঝতে পারছে না। ঠিক আছে, নিজেদের সতর্কতাটা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কাছে এখন এই মুহূর্তে, যেখানে সমস্ত স্টেট এর গভর্নমেন্টই সমস্ত কিছু খুলে দিয়েছে। ঠিক আছে, স্কুল খোলেনি বুঝলাম, শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ আছে, আর কিছু করার নেই, শিক্ষা খুলবেও না যেটা যা মনে হচ্ছে। এখন খোলার তো কোনো আহ, ইচ্ছা বা এরকম কোনো জিনিস তো দেখতে পাচ্ছি না। পড়াশোনা নিয়ে কোনো কথা কিন্তু হয়নি, মানে স্কুল কলেজ এই নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়নি। তবে হ্যাঁ, কলেজগুলো যেহেতু ফর্ম ফিল আপ করানোর ব্যাপার থাকে, যেহেতু ওরা একটু বড়সড় আছে, তো এই সমস্ত কাজগুলো করার জন্য ওদেরকে তো আসতেই হচ্ছে। আর কলেজকে তো আর বলতে পারে না যে গার্জেনদের পাঠিয়ে দাও। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। বললো, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ওই জন্য কলেজে গার্জেনদের আসতে, মানে তোমার ছাত্রছাত্রীদের আসতে বলতে হচ্ছে, যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের কাজ করছে, ফর্ম ফিল আপ করছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে বিষয়। ये तो करना ही पड़ेगा। বিদ্যালয় की जब बात आती है, দেখো বিদ্যালয় কি হলো বিষয়টা, প্রজেক্ট, প্রজেক্টটা 10-এরও থাকে, 11-এরও থাকে, 12-এরও থাকে। ঠিক আছে, এই ক্লাসগুলো সেরকম, এই ক্লাসগুলো কিছুই পড়ানো হয়নি। ঠিক আছে, না 10 কে, না 11 কে, না 12 কে। 12-এর আমাদের এদিকে কি বলছে, আমাদের এদিকে বলছে যে, আমাদের এদিকে বলেছে, পড়ে, থেকে পড়ে, ঠিক আছে পড়ি। তো কি হচ্ছে, এখন এদিকে বলেছে যে 5ই জানুয়ারির পরে প্রজেক্ট সব জমা দিবে, ক্লাস 12 কে। ক্লাস 10 কে কি বলেছে জানি না, 11-এ তো প্রজেক্ট নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। ঠিক আছে, প্রজেক্ট নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। তো এরকম হচ্ছে ব্যাপার, তো স্কুল নিয়ে কোনো ব্যাপারই নাই, স্কুলের নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই। ঠিক আছে। তো আর কি বলবো বলো, স্কুল খুলবে না এটাই ধরে রাখো। ঠিক আছে, খুলবে না এটাই ধরে রাখো, এই নিয়ে এগো। তো ওরা তো ভালোই আছে এক প্রকার, আর এইভাবে তো আর চলতে পারে না, তাই না? বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো, যেগুলো যারা 5 থেকে ধরো 8 অব্দি পড়ছে, ঠিক আছে, আহ, উম, তো তারা কি দোষ করেছে? না, তারা তো তাদের পড়াশোনা করে সেরকম ভাবে কিছু করতেই পারছে না, তাই না? স্কুলটা হলে তবুও বা পড়ে। আমার এই যারা, যে সমস্ত বাচ্চাগুলো তাদের কথা ভাবো, মানলাম চাল ডাল দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কিছু ছেলে, সেটা তো
হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। কিছু ছেলে মেয়ে কিন্তু স্কুলটা যেত, স্কুলে খাওয়ানো হয় এইটা দেখে, বা বিশেষ করে প্রাইমারি সেকশনটার, ম্যাক্সিমাম অফ প্রাইমারি সেকশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ওখানে তো বিশেষ করে সত্যি কথা বলতে কি, এখনকার পশ্চিমবাংলায় একটা জিনিস দেখাচ্ছে যে প্রাইভেট স্কুলের প্রতি গার্জেনদের একটা অতিরিক্ত মানে ভরসা চলে এসছে তাদের। তারা ম্যাক্সিমাম যাদের পয়সা আছে তারা বলছে আমরা প্রাইভেট স্কুলেই পড়িয়ে নিতে পারি। যারা মধ্যবিত্ত, তারা একটু আর্থিক দিক থেকে এখনো পিছিয়ে রয়েছে সমাজে, যাদের আর্থিক সংস্থান সেরকম নেই, তারা প্রাইমারি স্কুলে বা স্কুলে আলো যে সমস্ত স্কুল আছে তারা পড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেখবে প্রাইভেট স্কুলের প্রতি গার্জেনদের এখন মানে তাদের চিন্তাধারাটা প্রাইভেট স্কুলের প্রতি একটা অন্যরকম হয়ে গেছে। তারা মাঝে সাঝে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় তোমরা আন্দোলন করতে দেখছো ঠিকই, কিন্তু সরকারি স্কুলের প্রতি সেই ভরসাটা কিন্তু অনেক গার্জেনেরই উঠে গেছে, দেখবে। কারণ দেখো, সরকারি স্কুলে মানছি বই, জামা, চাল ডাল, জুতো, ব্যাগ, ঠিক আছে, সবই পাওয়া যায়। তো অনেকের বক্তব্যটা তারা ক্লিয়ার বলে না, বাট কিন্তু তাদের হাব ভাবে তো বুঝিয়ে দেয় যে ওখানে পড়াশোনাটা অ্যাটলিস্ট প্রাইভেট হয় না, এটা তো বুঝিয়ে দেয় না। এটা তো একদম বুঝিয়ে দেয়, কারণ এখন প্রাইভেট স্কুলে যে হারে ভর্তি করছে, মানে প্রাইভেট স্কুলে যখন যে ভর্তি করাতে পারছে, একটা জিনিস মাথায় রাখো, বা এটা তো একদম বাস্তব, তার মানে তার সেই সামর্থ্যটা আছে প্রাইভেট স্কুলে চালিয়ে নেওয়ার মতো। হ্যাঁ, একটা প্রাইভেট স্কুলে যে গার্জেন ভর্তি করছে তার ছেলে কিংবা মেয়েকে, মানে পুরো যে খরচাটা সে চালাতে পারবে, একটা ইয়ারলি বা মান্থলি তাদের যে কোর্স ফিসটা হয় সেটা দিতে পারবে, তাদের যে পড়াশোনা সে ম্যানেজ করে নিতে পারবে, এসব ভেবেই সে দিচ্ছে। একটা স্কুলে শুধু ভর্তি করে দিলেই তো হলো না। একটা এখনো আমাদের এডুকেশন সিস্টেম সেই জায়গায় এসে পৌঁছায়নি যে স্কুলে শুধু ভর্তি করে দিল, স্কুলে স্যার ম্যাডাম পড়িয়ে দিল, বাস হয়ে গেল। টিউশনস টাকা উইদাউট টিউশনস কে পড়ে তুমি বলো? সে তো উইদাউট টিউশনস তো নেই। সমস্ত বাচ্চারাই পড়তে যায়, ওই বাচ্চাগুলো কি পড়তে যায় না? ওই বাচ্চাগুলোও পড়তে যায়। ওই বাচ্চাগুলো তুমি যদি দেখো, এরকম অনেক বাচ্চা যে তারা ওদের স্কুলের হয়তো কোনো স্যার ম্যাডামদের কাছে পড়ছে, হ্যাঁ, বা হ্যাঁ, ওইটা ওদের একটা ইনকাম, বা বা অন্যান্য কারোর কাছে, যারা পরিচিত কারোর কাছে যদি পড়লো, সে পড়ায়, এরকম রয়েছে, তাই না? এইভাবেই তো চলছে। तो देखो, उसके बाद जो प्रश्न आता है काल तक, এটা ভালো করে শুনে উত্তর দেবে রিন্टू। काल के प्रकार होते हैं, नंबर 1 3, नंबर 2 4, सॉरी नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 6, क्या बोलोगे आप? ओके गुड। দেখো, প্রশ্ন, দেখো তোমাদের কম্পিটিটিভ এক্সাম, তোমার বিপিএসসি টাও তো বোধহয় দিতে যাওয়া হয়নি না? বিপিএসসি তো, ठीक है नेक्स्ट, हाँ बीपीएससी, ये नेक्स्ट साल देना बीपीएससी। বা ये कभी कभार পরীক্ষাতে না, হ্যাঁ বলো। বলছি মানে সাড়ে 10টা, হ্যাঁ বলো না, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, হুম। আমি যদি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, 10:30, ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে বুধবার দিন একটা ঠিক আছে ঠিক আছে, বুধবার দিন কখন আসবে বললে? ওই সকালে 10:30 ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে, তাই এসে অসুবিধা নেই, কখন হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওই আমি ফটিমা নেমে একটা ফোন করো না, আমি চলে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ফোন করো, দরকার হলে ওয়েট করার জন্য বলতে তুমি ইয়েতে ওয়েট করতে পারো, তো আমাদের বড় ঠাকুরের যে মন্দিরটা আছে ওটা তো জানো। হ্যাঁ, ওই জায়গাটাতে তাহলে থাকবো, তারপর না, ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসবো, দরকার হলে কোনো ব্যাপার নয়, আমি যাবো, ঠিক আছে, নিয়ে আসতে হবে, কারণ তুমি আসতে পারবে না এখানে, একটু ভেতর দিকে তো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে बुधवार दिन ऐसा कौन व्यापार नहीं, ठीक है देखो। तो काल से कहते हैं, अगर हमको पूछा जाए तो वही उत्तर होगा भाई, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध होता है, बोध हो, उसे काल कहते हैं, बस। अब यहाँ पर पूछ रहा है एक सवाल, काल के कितने भेद है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, बहुत आसान से सवाल है। देखो, काल के 3 भेद है,
एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। देखो भूतकाल के दोनों उदाहरण अगर देना है तो दोनों दे दो भाई। मधुरीम ने गीत लिखा, हो गया। सोमा ने गीत गाया। वर्तमान काल से सुबह से वर्षा हो रही है। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे, ठीक है जी, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं। तो ये गया। अब देखो, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे। अब भविष्य काल में मैं यही कार्य काल करूंगा। काल अध्यापक जी हमें कविता पढ़ाएंगे। रविवार को मैं पापा के साथ लाल किला देखने, ओ, ओ, ठीक है, रविवार को मैं पापा के साथ, रविवार को मैं पापा के साथ कलकत्ता लाल किला देखने जाऊंगा। अ, ठीक है, ठीक है, देखो। हाँ हाँ, मैसेज ढुकছে, ठीक है, देखो। देखो এবার বিষয়টা হচ্ছে, अब क्या है, तो ये दोनों दो दो करके उदाहरण तो हो गया। अब इसके बाद जो आ रहा है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचान कर लिखो। দেখো, এবারে কাল পেহচান কার লিখো। এবার তোমাকে কিন্তু বলতে হবে ঠিক করে। আমি তোমাকে বাক্যগুলো বলছি, মন দিয়ে দেখো। तो बोलते हैं कि शायद आज निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचान कर लिखो। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रयुक्त काल को, यानी कि पहले आपको वाक्य को अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। वाक्य को अच्छी तरह से सुन लोगे तो अच्छी तरह से पहचान पाओगे, तब जाकर उत्तर दे पाओगे ठीक से। आपको जब सिर्फ वाक्य को सुनकर बोलना पड़ेगा, ये भूतकाल में है या वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है। तो भूतकाल जो है अतीत काल है, वर्तमान जो है प्रेजेंट टेंस है, और भविष्य काल जो है फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो सुन लो अच्छी तरह से बात। शायद आज आंधी आए, क्या होगा? शायद आज आंधी आए, ये भविष्य काल। शायद आज आंधी आए, आने का संभावना है। बोल सकते हो ऐसे, शायद आज आंधी आए। देखो शायद आज आंधी आए, जब आज बोल जाए, देखो एक चीज बता देता हूँ। अगर आपको आज बोल देगा ना, हाँ, ये शब्द जो होगा ना, ये आज अगर बता दिया ना, तब होगा वर्तमान काल ही होगा। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ। अगर आज बता देगा तो वर्तमान काल ही होगा। अगर काल देखो, अगर काल बोल रहे हैं तो काल को आपको समझना पड़ेगा। काल बता रहे हैं ना, तो काल तो दोनों होता है ना, एक जो बीत चुका है और एक जो है वो आने वाला है। तो बात को देखकर आपको समझ में आ जाएगा भाई, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बात बीत चुका है, ये समय बीत चुका है, या फिर आने वाला है। जैसे कि शायद आज आंधी आए, शायद आज आंधी आए, आज ही आए, आज ही के दिन ধরো আকাশে খুব মেঘ করেছে, ঠিক আছে। তো আকাশে খুব মেঘ করেছে, তোমাকে বাক্য, তোমার বাড়ির কেউ বলছে আজকে বিরাট বৃষ্টি হবে, তো তুমি এটাকে তো ভবিষ্যৎ বলতে পারবে না। আচ্ছা, वर्तमान ही बोलता है, ठीक है, वर्तमान काल ही बोलना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब बताओ, काल उसे बुखार था, क्या बोलोगे? अतीत काल है। भूतकाल, भूतकाल है ये, ठीक है। हाँ। अतीत काल, अतीत काल, ठीक है। जब बांग्ला है अतीत काल, तो हिंदी में भूतकाल बोलना, ठीक है। आ, हम सोमवार को मंदिर जाएंगे, ये भविष्य काल। पिताजी कार्य कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये वर्तमान काल। मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा था, ये भूतकाल है। उसने काल रात मुझे फोन किया था, ये भी भूतकाल है। ठीक है, ठीक है, एकदम सही बात। अब जो है, ये बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्य को काल के निर्देशानुसार बदलिए। अब कभी